Today I'm going to discuss previous extended talks stations जो कि जुलाई 2022 में फर्स्ट टाइम फॉर्मेट चेंज होने के बाद जो पहला एग्जाम हुआ है ये वो वाले पेपर्स होंगे. डे 1 का आज मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ. डे 1 यानी कि 1 जुलाई 2022. Station number 1. Primie gravida came in gynae OPD at 26 weeks of gestation with BSR 166 milligrams per deciliter. She had no subjective complaints. All other labs are normal. You advised OGTT and the values are fasting 101 milligrams per deciliter है, 1 hour postprandial 172 पे है, 2 hours 154 milligrams per deciliter है. What is your diagnosis? आप इस तरीके से कहेंगे, as my patient is primie gravida and she has raised blood sugar random values for which the standard values are 140 milligrams per deciliter and the oral glucose tolerance test values are also deranged. So most likely she's a case of gestational diabetes mellitus. However, my final diagnosis will be confirmed after 6 weeks postpartum with fasting blood sugar levels. आप अपना डायग्नोसिस उसी पे कंफर्म करेंगे क्योंकि गाइडलाइंस भी हमें रेकमेंड करती हैं कि आप 6 वीक्स पोस्टपार्टम एक दफा फास्टिंग देख लें या आप जीटीटी करा के देख लें. अगर आपकी वैल्यूज खराब आ रही हैं इट मींस कि ये पेशेंट पुरानी डायबिटिक है. और दूसरा डायग्नोस्टिक पॉइंट कौन सा था, यानी बुकिंग विजिट पे या फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे किसी की HbA1c की वैल्यूज का खराब आना या शुगर लेवल्स का खराब आना. सो आपने इस तरीके से कहना है, considering that she is primie gravida and she came with raised blood sugar levels and the GTT values are deranged, she is most likely a case of gestational diabetes mellitus. However, I will confirm my diagnosis in postpartum time. What is the interpretation of these values? आपने ये कहना है that oral glucose tolerance test is a 3-step procedure. It is always done with 75 grams glucose for which the standard values are fasting 90 milligrams per deciliter, 1 hour postprandial should be 140 milligrams per deciliter and 2 hours postprandial value should be 120 milligrams per deciliter. However, the values given here are raised above the normal level. I diagnose these values to be a deranged GTT value. उसके बाद अगला सवाल है, how will you manage her pregnancy? आपने अपनी अप्रोच बतानी है. According to the scenario, my patient is primie gravida and she presented at 26 weeks of gestation with raised values. According to the values of GTT, she looks like a case of gestational diabetes mellitus. However, for the management, I will probe her history. First, I will take the required biodata and then I will take trimester-wise history. Up till now, I will ask her for how long is she married and is there any previous history of diabetes mellitus? She ever had raised values of blood sugar levels? She ever went to medical physician or not? She ever started insulin or not? She ever took some kind of oral hypoglycemics or not? Was it a planned pregnancy? She was given ovulation induction or not? It was assisted reproductive technique pregnancy or not? 26 वीक्स तक की आपको ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री चाहिए. उसके लिए आपका मेन फोकस क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बुकिंग विजिट पे HbA1c की वैल्यूज किसी ने देखी थी या उस वक्त भी रैंडम वैल्यूज ज्यादा थी? तो फिर तो ये पुरानी डायबिटिक निकल आई. और अगर आई थी तो क्या आपके डॉक्टर ने ग्लाइकोस यूरिया करवाया? आपके डॉक्टर ने बाकी टेस्ट करवाए थे? RFTs LFTs हुए थे? क्या आपके डॉक्टर ने घर पे बनाने वाला चार्ट दिया था? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं. क्या वो सारे हमल में 26 वीक्स तक अपने घर में ब्लड शुगर का चार्ट बनाती आई है? क्या उसको डाइट काउंसलिंग की गई, एक्सरसाइज की काउंसलिंग की गई, या ये बिल्कुल ही पहली इंसिडेंटल फाइंडिंग है? उसके बाद उसकी फीटल मूवमेंट्स की हिस्ट्री, उसका एनॉमली स्कैन था कि नहीं, ग्रॉस फीटल एनॉमलीज पे कोई कमेंट था, कोई भी डायबिटीज के सिम्टम्स, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये जो GDM वाले केसेस होते हैं ना, इनको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया ज्यादा होता है. DM वालों को नहीं होता, GDM वालों को ज्यादा होता है. सो आपने ये भी पूछ लेना है इंटेंसिटी, सिवेरिटी ऑफ द सिम्टम्स, कोई सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स. ऐसा तो नहीं है कि उसके एब्डोमिनल डिस्टेंशन एक्सेसिव तो नहीं हो रही, पता चले पॉलीहाइड्रेमनियाज डेवलप हो रहा हो. सो यहां तक थोड़ा सा 26 तक पूछें, उसके बाद आगे चले. 26 वीक्स तक पहले पहुंचना है. यहां से आगे नॉर्मल कंसिडर करते हुए चलना है. अब आप क्या कहेंगे? अब आप ये कहेंगे दैट विद दिस वैल्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव हर ब्लड शुगर चार्ट.
आप उसको 3 दिन का चार्ट दें। आप उसे कहें कि जी देखो ये वाला चार्ट मैं बना के दे रही हूँ, नाश्ते से पहले लेवल चेक करोगी, नाश्ता करने के 1 घंटा बाद, उसके बाद लंच से थोड़ी देर पहले, और लंच करने के 1 घंटा बाद, डिनर से पहले, डिनर का 1 घंटा बाद। 3 दिन का घर में चार्ट बना के मेरे पास आपने ओपीडी में चौथे दिन आके विजिट करना है। उस चौथे दिन के दौरान और चीजें भी बता दें, उसे आप सारी बेसलाइन प्रोफाइल दे दें। सिनेरियो में इट इज मेंशन्ड दैट ऑल लैब्स आर नॉर्मल, सो आई एम अज्यूमिंग का लफ्ज इस्तेमाल करें बीच में कि मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि इसकी सारी बेसलाइन लैब्स दे मस्ट बी नॉर्मल। सो अब जो मेरा प्लान होगा वो ये होगा कि पहले 3 दिन का चार्ट, if the values are normal, it's okay. I will counsel her that she may end up with a high risk pregnancy. GTT की वैल्यूज खराब आई हैं, सो मैं उसको डाइट काउंसलिंग बता दूंगी कि देखो आपने बर्गर, पिज्जाज, आलू, चावल, खमीरी रोटी, नान, ऐसी चीजें नहीं खानी, क्योंकि जो हमने आपको ग्लूकोज का गिलास पिला के टेस्ट कराया था वो खराब आया हुआ है। इसका मतलब है आपकी बॉडी ने ग्लूकोज के लोड के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया, और रैंडम की वैल्यू भी खराब है। सो इसका मतलब है कि देयर इज प्रॉब्लम। तो पहले मैं उसको डाइट के साथ और वॉक के साथ रेकमेंड करूंगी कि 30 मिनट्स की वॉक करो। अगर तो वो डाइट पे कंट्रोल हो जाती है, वेल एंड गुड, तो फिर तो मैं उसको इसी तरह से फॉलो अप विजिट पे, जो उसका एंटीनेटल विजिट होता रहेगा, मैं उसी पे बुलाऊंगी। कीपिंग एन आई ऑन फीटल ग्रोथ, कीपिंग एन आई ऑन कॉम्प्लिकेशंस। इट कुड बी अ केस ऑफ पॉलीहाइड्रेमनियोस, इट कुड बी अ केस ऑफ मैक्रोसोमिया इन द फ्यूचर। सो इन चीजों के लिए मैं केयरफुल रहूंगी। अगर चार्ट में सब चीजें ठीक आती हैं, ठीक है, घर भेज दें, डाइट के लिए काउंसिल करें, वॉक के लिए काउंसिल करें, फिर बुला लें अगले हफ्ते। इन द मीन टाइम उसे कहें फीटल मूवमेंट का ख्याल रखें। उसमें फिर एग्जामिनर आपसे डाइट का वाइवा कर लेगा, बता दें कि जी कार्ब्स जो है वो 40 to 50% तक होनी चाहिए, फैट्स 15 to 20% तक होनी चाहिए, डेली तकरीबन वो 2100 किलो कैलोरीज डाइट ले सकती है। एट दैट टाइम जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पे नहीं आपने भेजा ना, तो फिर आपका वाइवा डाइट पे चलेगा, फिर आपका वाइवा वॉक पे चलेगा। फिर वो पूछ सकती है कि अच्छा वॉक कैसे करोगी, उसको क्या कहोगी, वो तो किसी कंजेस्टेड से एरिया में रहती है, या वो बहुत कोई पर्देदार खातून है, इस तरह की बात कर देंगे वो, या वो कह देंगे कि नहीं जी उसको तो घर से निकलने की इजाजत ही नहीं है। तो फिर आपने ना अपनी कमिटमेंट शो करनी है। आपने कहना है कि मैडम दिस इज असेंशियल फॉर हर, दिस इज असेंशियल फॉर द मदर एंड द बेबी। सो मैं उसको ये बात कहूंगी कि अपने हस्बैंड के साथ बुर्का पहन के चली जाए, और बेहतर है खाने से पहले वॉक करे और 30 मिनट्स की वॉक करे, ब्रिस्क वॉक करे। अगर ऐसा नहीं है, अगर उसका हस्बैंड भी टाइम नहीं दे सकता, उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उसे कहूंगी घर की छत पे वॉक कर ले। अगर घर की छत भी नहीं है तो कोई घर का सहन उसमें वॉक कर ले। अदरवाइज अगर वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं सिंपली उसे कहूंगी अस्पताल में आके एडमिट हो जाए, अस्पताल में बहुत बड़ी जगह है। सो अगर उसकी शुगर के लेवल्स 3 दिन के बहुत खराब आए, 200 में जा रहे हैं, फौरन एडमिट करें। एडमिट करके वही चीजें, मैटरनल मैनेजमेंट, फीटल मैनेजमेंट। चूंकि आपका केस 26 वीक्स पे है तो ठीक है, आपने FKCC देना है, CTG तो होगी नहीं, CTG तो 32 वीक्स के बाद होती है। सो आप उसको सिर्फ एडमिट करेंगे, 6 पॉइंट ब्लड शुगर लेवल्स देखते जाएंगे अपने सामने, और आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक स्टार्ट करें। आप उन्हें कहेंगे अगर मेरी पेशेंट पहले कुछ नहीं ले रही थी, डाइट एक्सरसाइज से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक स्टार्ट करूंगी। मेटफॉर्मिन अच्छी ड्रग है, प्रेगनेंसी में देते हैं, सेफ है। उसके बाद बाकी वही वाली बातें हैं जैसे आप एंटीनेटल विजिट करते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है मोड ऑफ डिलीवरी। आप उन्हें कहें कि मैडम मैं अपनी पेशेंट को री एवेल्युएट करूंगी 36 वीक्स पे। हमेशा प्रेगनेंसी को 36 वीक्स पे या 35 पे री एवेल्युएट किया करें। अगर सब चीजें ठीक जा भी रही हैं या नहीं भी जा रही, दोबारा देखा करें। डिलीवरी से पहले ना आपने री असेसमेंट वाले दिन बुलाना है, वहां पे डिलीवरी का प्लान बताना है। अगर 38-37 का सिनेरियो आया तो फिर तो 3 दिन बाद रीएवैल्यूएट कर लें, ठीक है। फिर आप ये कर सकते हैं कि ट्वाइस अ वीक रीएवैल्यूएट कर लें, और उस रीएवैल्यूएशन में आप ये कहेंगे कि मैडम आई विल कॉल हर एंड आई विल रीएवैल्यूएट हर एट 36 वीक्स। इन दैट विजिट आई विल चेक ऑल हर वाइटल्स, आई विल चेक वेदर शी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स और नॉट। I will check her abdominal girth, fundal height, lie presentation, growth of the baby. I will get her ultrasound done for fetal biometry including BPD, FLAC, for amount of liquor, for AFI, for placental localization. If the baby is well grown according to the gestational age, if the labs are okay, if she has no subjective complaints, if her clinical examination is according to the gestational age, if everything is fine, then my plan will be spontaneous normal vaginal delivery.
शी इज प्राइमी ग्रेविडा, सो आई विल प्लान इंडक्शन ऑफ लेबर, डाइट एंड एक्सरसाइज पे 39 तक ले जाएं, 39 प्लस पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन स्वीप करना बेहतर है। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि मैडम नेक्स्ट विजिट मैं उसको 38 वीक्स पे पेल्विक असेसमेंट के लिए बुला लूंगी और उसे काउंसल भी कर दूंगी कि अगर वो एक हफ्ते तक लेबर में नहीं गई, अगर उसे स्पॉन्टेनियस कुदरती दर्दें नहीं आई, तो फिर मैं उसका इंडक्शन ऑफ लेबर प्लान करूंगी। फिर इंडक्शन में आपकी अपनी चॉइस है, आप जेल से करें, आप टैबलेट से करें, आप इसके बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात रखें। 3 मिलीग्राम की आती है टैबलेट, एक डोज देते हैं, 6 घंटे बाद दूसरी डोज देते हैं, फीटल हार्ट रेट देख रहे होते हैं, सीटीजी देख रहे होते हैं, वो फिर थोड़ी बहुत उसके बारे में बातें हैं। उसके बाद आप ये कहें कि मैडम इफ एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, इफ शी गोज इन लेबर और वो मेरे पास आ जाती है लेबर में, ठीक है, वेल एंड गुड, मेरा इमरजेंसी वेल इक्विप्ड है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक अपनी फीटल मॉनिटरिंग भी करूंगी और इसके अलावा आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन जस्ट लाइक शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया इज एक्सपेक्टेड, सो मैं उसके लिए रेडी रहूंगी, थिएटर रेडी रहेगा, किसी भी तरह का सडन फीटल डिस्ट्रेस के लिए मैं रेडी हूं, सो दैट्स व्हाई मैं फीटल मॉनिटरिंग भी कर रही हूंगी। मैं उसको डिलीवर करूंगी, उसके फौरन बाद मैं ब्रेस्ट फीडिंग को इंश्योर करूंगी एंड आई विल गिव हर कॉन्ट्रासेप्शन इन द फॉर्म ऑफ PPIUCD। और PPIUCD की काउंसलिंग को एक दफा जब आप रीएवैल्यूएट वाले विजिट में बुलाएंगे ना, तो 36 वीक्स पे काउंसल भी कर दें। I will discuss with her the plan of contraception। इसके बाद आपने बता दिया कि हर चीज नॉर्मल है, चली गई लेबर में, सब कुछ हो गया, डिलीवर हो गया, PPIUCD हो गई। फिर आप कहेंगे मैडम नाउ आई विल काउंसल हर टू डू फॉलो अप विजिट एट 6 वीक्स पोस्टमार्टम सो दैट आई कुड चेक हर फास्टिंग लेवल टू कंफर्म माई डायग्नोसिस। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंडक्शन के फौरन बाद बेबी डिस्ट्रेस में चला जाए। सो मेरा पेशेंट काउंसल्ड है, मैंने कॉन्सेंट लिया हुआ है, मेरा थिएटर भी रेडी है। अगर ऐसी कोई बात हुई आई विल इमीडिएटली शिफ्ट माई पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर और उसका मैं सी सेक्शन कर दूंगी। सी सेक्शन करने के बाद भी PPIUCD रखनी है।